کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مزید 3 کارپوریٹرز نے مدھیہ پردیش کے کھرگون بلدیہ سے کامیابی حاصل کی۔ مدھیہ پردیش کے بعض شہروں میں 2 مرحلوں میں بلدی انتخابات منعقد ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں کھرگون اور رتلام کے نتائج جاری ہوئے۔ ان میں کھرگون میونسپل کارپوریشن سے مجلس کی وارڈ نمبر 2 کی امیدوار ارونا اپادھیائے، وارڈ نمبر 15 سے شکیل خان اور وارڈ نمبر 27 سے شبنم ادیب کامیاب ہوئے۔ ارونا اپادھیائے نے بی جے پی کے امیدوار کو شکست دی، جبکہ شکیل خان نے اور شبنم ادیب نے آزاد امیدواروں کو شکست دی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مدھیہ پردیش کی بلدی انتخابی مہم میں شرکت کی تھی، تاہم وہ کھرگون اور رتلام نہیں جا سکے۔ مجلس نے مختصر وقت میں اپنے امیدواروں کو کھڑے کرتے ہوئے صرف چند دن کی مہم چلائی تھی، جس میں مجلس کے کھرگون میں 3 امیدوار کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں اویسی صاحب کا شکر گزار کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے کھرگون میں پارشد پد کے لیے ٹکٹ دیا، اور وارڈ 2 کے سبھی جنتاؤں سے میں ان کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے پارشد وہاں کا بنایا، اور میں ان کی ساری امیدوں پر کھری اتروں گی۔ جو بھی وہ مجھ سے چاہتے ہیں وہ سارے کام میں کروں گی، چاہے وہ پانی کا ہو، سڑکوں کا ہو، لائٹ کا ہو، گٹروں کا ہو، سبھی چیزیں میں صدر کانگریس سونیا گاندھی سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پوچھ تاچھ کے خلاف کانگریس نے حیدرآباد میں دفتر ای ڈی کے سامنے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی، سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا اور دیگر قائدین نے حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر کانگریس کے خلاف سازش کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ای ڈی اور دیگر سرکاری سرکردہ ایجنسیوں کو کانگریس کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی بانی و صدر منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے لیے نورانی قاعدہ ورک بک ترتیب دی گئی ہے۔ یہ ورک بک 2 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ عصری اسکولوں میں طلباء و طالبات ہر مضمون پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں، تو ان طلباء کو قرآن مجید کی زبان سکھانے کے سلسلے میں یہ کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ علم کا تعلق پڑھنے اور لکھنے دونوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورک بک طلباء کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اس میں مختلف عنوانات کو جگہ دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 2 حصوں کو 5-5 ہزار کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے۔ نورانی قاعدہ بک کی افادیت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں مولانا جمال الرحمن مفتاحی صاحب و مولانا عبدالقوی حسامی اور دوسروں نے ستائش کی ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غیاث احمد رشادی، بانی و صدر منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جانا مقصود ہے کہ اسکولی طلباء اور طالبات جن کی اخلاقی سطح پر غور و فکر کیا گیا کہ جو بچے اور بچیاں اسکول اور کالجز میں پڑھ رہی ہیں، ان کو تعلیم تو دی جا رہی ہے، مگر اکثر اسکولز میں اور کالجز میں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی معصوم بچے ہیں جو مسلمانوں کے امیج کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان طلباء اور طالبات کے اخلاق اور ان کا کردار درست ہو جائے گا تو ایک بہت بڑا فائدہ ملت کا ہوگا۔ اسی فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزشتہ 5-6 مہینے سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ان اسکولی بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے سلسلے میں کیا کیا جائے اور ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ چنانچہ الحمدللہ گزشتہ 4-5 مہینے کے منصوبے کے بعد مربی حضرات کو الحمدللہ مقرر کیا گیا، اور 10 مربی علماء کرام ایسے ہیں جو اردو سے کے ساتھ ساتھ انگریزی سے بھی واقف ہیں، جو روزانہ حیدرآباد کے اور سکندرآباد کے مختلف اسکولز میں جا رہے ہیں اور اخلاق کی بات کر رہے ہیں۔ مورل سائنس کے نام سے ایک پروگرام، بیسٹ کیریکٹر پروگرام شروع کیا گیا، اور 12 جون سے الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور کئی اسکولز اب تک الحمدللہ 50 کے قریب اسکولز الحمدللہ کور ہو چکے ہیں، اور ایک مربی، ایک عالم دین روزانہ ایک اسکول میں جا رہے ہیں، اور اسکول کے 400-500 جو طلباء اور طالبات ہیں
ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کے اندر مختلف عنوانات کے تحت بات کر رہے ہیں، جیسے غصہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، کینہ ہے، اور برداشت ہے، تحمل ہے، نرمی ہے، محبت ہے، غمخواری ہے۔ اس قسم کے عنوانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کر رہے ہیں، تاکہ ان بچوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے آئے۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں 11 سالہ لڑکی کی مشتبہ حالت میں چوتھی منزل سے گر کر ہلاک ہونے کے واقعے کی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس وہاں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ بھی کر رہی ہے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے۔ ضلع نلگنڈا سے تعلق رکھنے والے ستیہ نارائن ریڈی کی بیوی اپنی بیٹیوں کے ساتھ منصور آباد مدھورا نگر کالونی میں مقیم ہے، جبکہ ستیہ نارائن ریڈی جو پیشے سے کسان بتایا گیا ہے، کھیتی باڑی کے کام کے بعد شہر آیا کرتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی 11 سالہ ورشتا خانگی اسکول میں 6ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ وہ منگل کی شام تقریباً 5:30 بجے اسکول سے واپس ہوئی اور چپس لانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئی، لیکن واپس نہیں لوٹی۔ تاخیر پر ارکان خاندان نے آس پاس تلاش کیا، تاہم انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ورشتا منصور آباد چوراہا پہنچ کر آٹو میں سوار ہوئی اور چندرا پوری کالونی پہنچی، جہاں وہ تقریباً 6:15 بجے ایک عمارت پر گئی اور اس کے بعد مشتبہ حالت میں نیچے گرنے کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران سعید آباد میں 2 افراد نے ہنگامہ آرائی کی۔ ان افراد نے کل رات دیر گئے چلائی گئی اس مہم میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اور حالت نشے میں گڑبڑ کی۔ ان کی پولیس سے بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ اس میں سے ایک شخص نے اپنا پتلون اتار دیا اور رقم لے لینے کا پولیس پر الزام لگایا۔ اس شخص نے پولیس پر زیادتی کا بھی الزام لگایا۔ ایک اور شخص پولیس سے بحث و تکرار کے دوران سڑک پر گر پڑا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری نے یاقوت پورہ حلقے رین بازار ڈویژن کی امام باڑہ بستی کا تفصیلی دورہ کیا اور ڈرینیج کے مسئلے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو جلد حل کرنے کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس آر ٹی کالونی لبیک ہوٹل کے قریب ایس ڈبلو ڈرین کے کاموں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ یہ کام بھی جلد ہی تکمیل کو پائیں گے۔ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں جو ایک بستی ہے امام باڑہ، وہاں پہ ڈرینیج کا بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ ڈرینیج کے لینا پورے چوکیز ہو گئے اور کئی دنوں سے وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہے۔ گھروں میں پورا بیک مار رہا ہے وہاں پر۔ تقریباً عید سے پہلے سے کمپلینٹ کر رہے ہیں سیوریج بورڈ والوں کو۔ وہ ایک گاڑی آتی تھوڑی دیر صاف کرتی چلی جاتی، لیکن ایک اس کی جو سیل نکالنے کی گاڑی ہے وہ پورے حیدرآباد میں 1 یا 2 ہے، وہ گاڑی نہیں آ رہی ہے۔ آج 8 دن سے کم از کم روزانہ بول رہے ہیں کل آ رہی کل آ رہی کل آ رہی۔ آج سی جی ایم صاحب جی ایم صاحب سب آ کے وہاں پہ دورہ کرے اور کتنی تکلیف ہے کیا یہ لوگ دیکھے۔ امام باڑے کے لوگ کافی تکلیف میں ہیں، بچے بیمار ہو جا رہے ہیں، بہت سیریس کنڈیشن میں ہے۔ تو اب وہ لے کے کل صبح 9:30 بجے وہ گاڑی لائیں گے جس گاڑی سے سیور لائن میں سے سیل نکال کے پھینکیں گے اور 1-2 مہینوں صاف کرے تو پوری لائن کلیئر ہوا تھی۔ وہاں دورہ کرے امام باڑے پہ، عاشور خانے سے لے کے اندر بستی تک پورا پھر کے بتائے۔ پھر وہاں سے ہم رین بازار ایس آر ٹی کالونی کے پاس یہ لبیک ہوٹل کے پاس جو ڈرین کا کار ہو رہا ہے، ایس ڈبلو ڈرین کا کام ہو رہا ہے، اس کا معائنہ کرے۔ ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے ایریا کے انسپیکٹر کو بلا کے بتائے کہ 1-2-4 دن کا کام ہے، انشاءاللہ پیر تک کے کام کمپلیٹ ہوگا تو آمد و رفت کے لیے لوگوں کے لیے روڈ کھول دی جائے گی۔ اس کے بعد سیسی روڈ کی کانگریس لیڈر عثمان الحاجری نے کہا ہے کہ دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانے کے سامنے قبرستان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قبور پر پولس لگاتے ہوئے شیڈ کی تعمیر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 20 پولس قبرستان میں لگا دیے گئے ہیں۔ فورنسک لیبارٹری کے ڈاکٹر ابھیجیت کا کہنا ہے کہ قبرستان میں وزٹرز کے لیے شیڈ بنایا جا رہا ہے۔ عثمان الحاجری نے اس پر اعتراض کیا اور صدر نشین وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی سے بات چیت کی۔ انہوں نے غیر مجاز قبضوں کی بھی اطلاع دی اور کہا کہ قبور کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ہم یہاں قبرستان عثمانیہ ہاسپٹل کے سامنے جو مارچری ہے، عثمانیہ ہاسپٹل میں جو مارچری ہے، مارچری کے بالکل مقابل میں یہ قبور ہے۔ پورے قبور کے اوپر
ये पूरे पोल्स गाड़ के यहाँ पर शेड तामीर करने की तैयारी की जा रही है। पोल्स गाड़ दिए, तकरीबन 20 से ज़ायद पोल्स गाड़ दिए आयरन के। और यहाँ जब हम आए तो यहाँ के फॉरेंसिक लेबॉरेटरी डिपार्टमेंट के कोई डॉक्टर अभिजीत आकर ये बता रहे हैं कि आप आइए, सुपरिटेंडेंट साहब से बात कीजिए, हम लोग यहाँ पर शेड बना रहे हैं विज़िटर्स के वास्ते। क़ब्रिस्तान में विज़िटर्स को शेड बना के डालना ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात किया, डीएसपी साहब से बात किया कि यहाँ पर ये इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा और ख़बरों की ये बेहरमती हो रही, इसके ख़िलाफ़ फौरी से फौरी सुपरिटेंडेंट जो उस्मानिया हॉस्पिटल के हैं, चूँकि उनके कहने के मुताबिक ये रिकॉर्डेड है, डॉक्टर अभिजीत और सुपरिटेंडेंट उनके कहने के मुताबिक अभिजीत के सुपरिटेंडेंट साहब के हुक्म से, इजाज़त से काम कर रहे हैं अभिजीत साहब। लिहाजा ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है, मुसलमानों के मजहबी जज्बात की दिलाजारी हो रही है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ केसीआर से कि आप बता रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टियों का मैं तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ, तमाम लोग आपकी ज़ुबान नहीं रुकती वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। ये सामने ये क़ब्रिस्तान में इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ फौरी पुलिस कंप्लेंट की जाए वक्फ बोर्ड की जानिब से, और वक्फ बोर्ड की जानिब से इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR कराया जाए और ये पोल्स फौरी से फौरी निकाला जाए, वरना हम आवाम को साथ लेके हम ये पोल्स निकालेंगे, मजबूर हो जाएंगे। ये क़ब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना तमाम वक्फ बोर्ड के अलावा तमाम मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी है, तमाम जमहूरियत पसंदों की ज़िम्मेदारी है, और केसीआर की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी से फौरी यहाँ पर जो इलीगल पोल्स गाड़े गए हैं शेड तामीर करने के लिए, यहाँ से उखाड़ दिए जाएँ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो ज़िम्मेदार है इसके, उनके ख़िलाफ़ FIR की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। 15 से ज़्यादा खबरें हैं यहाँ पर, और पक्के 200 साल से पुराना क़ब्रिस्तान है, गच्ची के क़बूर हैं। कई क़बूर यहाँ पर मिटा दिए गए, यहाँ पर खुला दिख रहा है, खुला नज़र आ रहा है यहाँ पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज अलुमनी लेक्चर देने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र की आमद की इत्तला पर तलबा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे, ताहम उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने 6 बरसों से PhD का एलामिया जारी न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। इन तलबा को बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सदर की हैसियत से MK मुजीबुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, वी प्रशांत रेड्डी, के ईश्वर के अलावा MLC के कविता, फारूक हुसैन, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। MK मुजीबुद्दीन के हामियों की कसीर तादाद भी उन्हें मुबारकबाद देने के लिए वहां पहुंची थी। उर्दू एकेडमी सदर नशीन MK मुजीबुद्दीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए हर मुमकिन इक़दाम का तयख़ुन दिया है। अलावाज़ी उन्होंने तमाम स्कीमात पर 15 दिन में अमल आवरी और उर्दू के मसाइल से हुकूमत को वाकिफ़ करवाने की भी बात कही है। आपको याद दिला दें कि कल हमने उर्दू एकेडमी चेयरमैन की हलफ बर्दारी तकरीब में उर्दू को नज़रअंदाज करने और बोर्ड्स होर्डिंग्स पर उर्दू इस्तेमाल न करने से मुताल्लिक़ खबर नश्र की थी, लेकिन आज सुबह इस खबर का असर ये हुआ कि बोर्ड्स पर उर्दू को शामिल किया गया। इस्लाम जो आज उर्दू अकाडमी की चेयरमैन की हैसियत से जो चार्ज लिया हूं, मैं उसका तहे दिल से KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस मौके पर जो कंसल्ट मिनिस्टर कोप्पुल ईश्वर साहब और अक्का कवितक्का और प्रशांत रेड्डी साहब और इज़्ज़त माप होम मिनिस्टर साहब और MLA जो भी आए हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, जो 2014 में तेलंगाना सेपरेट होने के बाद 2018 से 21 तक रहीमुद्दीन साहब इसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर गौस साहब जो अपने को चार्ज थे, डायरेक्टर थे, उनके पीरियड में जो वादे किए गए हैं, जो स्कीम्स स्टार्ट करने के लिए, जैसे अचीवमेंट अवार्ड्स और जो है सो पब्लिकेशन अवार्ड्स, स्टेट उर्दू बेस्ट टीचर को अवार्ड और जो भी शायरों का मुशायरों के, इससे पूरे
ताल्लुक़ से जो भी 1 साल से जो पेंडिंग है इंशाअल्लाह ताला एक 15 दिन में वो सब क्लियर करते हुए, इसलिए कि लास्ट टाइम अपने को जो पार्टी से कंसल्ट थोड़ा दूरी होने की वजह से अपन नहीं कर सके, इंशाल्लाह 15 दिन में वो पूरे स्कीम्स आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, जैसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट उर्दू अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उर्दू मैनस्क्रिपिंग अवार्ड और प्रिंटेड उर्दू अवार्ड, अवार्ड ऑफ प्रिंट उर्दू, फाइनेंशियल एड एंड स्मॉल उर्दू न्यू पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिस्ट एंड वीकेंड्स, फाइनेंस एड एंड रिपोर्टर्स ऑफ द उर्दू इलेक्ट्रॉल मीडिया, ये सब पूरे इंशाल्लाह आप लोग एक 15 दिन सब्र करिए, पूरे स्कीम्स इंशाल्लाह विथआउट डिले आप लोग को पूरे अमाउंट के साथ पूरे स्टार्ट किया जाएगा केसीआर साहब के। नेशनल हेराल्ड केस में एआईसीसी सदर सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए टीपीसीसी की जानिब से ईडी दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जो कि कामयाब रहा। नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे से शुरू होने वाले मुजाहरे में कांग्रेस के हज़ारों कारकुनान और हामियों ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के रवैये और ईडी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाते हुए नारेबाजी की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, मधु याशी गौड़, एमएलसी जीवन रेड्डी समेत कांग्रेस सीनियर कायदीन इस एहतजाज में शामिल रहे। ईडी दफ्तर के रूबरू हज़ारों अफराद के इस मुजाहरे के सबब ट्रैफिक खिदमात मुतासिर रही, जबकि पुलिस की भारी जमीयत को तैनात देखा गया। జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇలాంటి మహానుభావులు ఎంతో మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన నిలబడి సంవత్సరాల కొద్ది జైళ్లలో మగ్గి ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చారు. మొదటి ప్రధానమంత్రిగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ దేశంను హరిత దేశంగా మార్చాలని, కరువు కాటకాలతో ఆకలితో అల్లాడుతున్న పేద ప్రజలకు పట్టెడు అన్నం పెట్టాలని బాక్రానంగల్ డ్యామ్ నుంచి మొదలు పెడితే నాగార్జున సాగర్ వరకు మొదటి ప్రధానమంత్రి ప్రాజెక్టులను నిర్మించి ఈ దేశాన్ని హరిత విప్లవ దేశంగా వారు రూపురేఖలు మార్చింది. ఆ తర్వాత ఈ దేశానికి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు, ఈ దేశం మీద పాకిస్తాన్ దండ ఎత్తినప్పుడు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిగా శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసి 2 సార్లు ఈ దేశాన్ని గెలిపించి ప్రపంచ దేశాల ముందు ఒక బలమైన దేశంగా శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు నిలబెట్టారు. 41 సంవత్సరం క్రితం పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం చేసి గెలిపించి పాకిస్తాన్ 2 దేశాలుగా విడగొట్టి, పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్గా విడగొట్టి ఆ దేశం అంతు చూసిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశంలో విచ్ఛిన్నవాదం పెట్టినప్పుడు విచ్ఛిన్నవాదాన్ని కాల రాసి నేల మట్టం చేసి దేశ సమగ్రతను శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు కాపాడి దేశాన్ని वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने नागार्जुना सागर पालेर के ज़खायर से खरीफ की फसलों की काश्त के लिए पानी छोड़ा। खबलाजी वजीर ट्रांसपोर्ट ने पूजा भी की। पी अजय कुमार ने कहा कि इस साल रियासत में अच्छी बारिश हुई है और तमाम आबी ज़खायर की सतह आब में इजाफा हुआ है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने याद दहानी करवाई कि रियासत में वज़ीर आला केसीआर की फलाही स्कीमों के सबब भी गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन पर भी काश्त की जा रही है। ताहम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इन स्कीमात को सराहा नहीं जा रहा है। उन्होंने धान खरीदारी के मसले पर भी मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाते हुए किसानों को मशवरा दिया है कि वो चावल के बजाय दीगर मुनाफा बख्श और ज़्यादा पैदावार वाली फसलों की काश्त करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों को मुफ्त पानी की सरबराही के इक़दाम की भी रियासती वज़ीर ने सिताइश की है। तेलंगाना कांग्रेस हैदराबाद सदर व साबिक़ एमपी अंजन कुमार यादव की ज़ेर क़यादत आज कांग्रेस लीडरान ने ओल्ड एमएलए क्वार्टर से ईडी ऑफिस तक सियाह गुब्बारों के साथ एक एहतजाजी रैली निकाली। कांग्रेस लीडर्स ने मोदी डाउन डाउन के नारे लगाते हुए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर एहतजाज दर्ज करवाया। आपको बता दें कि सेंट्रल इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सोनिया गांधी गुज़िश्ता हफ्ते ही कोविड-19 से सेहतयाब हुई हैं और ईडी के समन के बाद आज वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हमरा ईडी ऑफिस पहुंची हैं। साबिक़ एमपी अंजन कुमार यादव ने वज़ीर आज़म मोदी समेत वज़ीर आला तेलंगाना
केसीआर को भी निशाना तनकीद बनाया है। अंजन कुमार यादव ने कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। टेररिज्म को बचा रहे तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने देख रहे, वो होने वाला नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। साहब स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी के खिलाफ चल रही है। दोनों चोरा है, वो बड़ा चोर ये छोटा चोर। पीएम झूठा सीएम झूठा, दोनों मिलके देश को दोनों मिलके देश को लूटा। तो ये लोग दोनों मिलके आवाम को गुमराह कर रहे। ये लोग दोनों एक ही बड़ा बट्टेबाज छोटे बट्टेबाज है दोनों। ये लोग अगले बार इससे पहले देखे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नोटबंदी को सपोर्ट करे, त्रिपुल तलाक को सपोर्ट करे, किसान वितरे की बिल को एंटी बिल को भी सपोर्ट करे। हमेशा सपोर्ट कर रहे, कैसा एक नहीं होते। ये कांग्रेस को दोनों लड़े के कांग्रेस नहीं है सरकार दिखाना चाह रहे, मगर कोई कुछ नहीं होने का। कांग्रेस ये बॉडी कुएं सूख सकते हैं मगर समुंदर कभी भी नहीं सूखेगा। मुशीर अक़लियती उमूर बराए हुकूमत तेलंगाना AK खान ने बताया है कि रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ महकमों में तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने का बेरोज़गार नौजवानों को मशवरा दिया है। AK खान ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि 90,000 ओहदों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी होने के फौरी बाद मुक़र्ररा वक्त पर अप्लाई करने और कोचिंग लेकर इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया है। रियासत तेलंगाना में बहुत बड़े पैमाने में यानी कि नियरली 90,000 जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट्स में लोअर लेवल पोस्ट जो हैं उसके लिए और जोन्स, मल्टी जोन, सर्विस कमीशन, हर एक जगह ग्रुप 1 ग्रुप 2 में तो बहुत अच्छे जॉब्स हैं। डिप्टी कलेक्टर्स, RDOs, DSPs ये लेवल के जॉब्स भी हैं और नीचे LDC तक। साथ ही साथ टेक्निकल जॉब जो हैं इंजीनियर्स के हो, R&B में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, यहाँ भी जॉब्स हैं और फॉरेस्ट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक महकमे में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये फैसिलिटी का और ये जो मौका मिला है उनको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्या है ये चेक कर लेना है। नोटिफिकेशंस कब आते हैं इसके इंतज़ार में रहना है, चेक करते रहना है और सही टाइम पर अप्लाई करके अच्छी तरह से कोचिंग लेके मैं समझता हूँ कि अगर मेहनत करें आप सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये मौका हमेशा नहीं आता है, इस बार जब मिला है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। MIM कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कौसम मोहिउद्दीन ने GHMC, महकमा वाटर वर्क्स, महकमा बरक़ी के हुकाम के हमरा नारायण नगर, टोली चौकी, लंगर हाउस और गोलकुंडा डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। MLA ने हुकाम को तरक्याती काम तेज़ी से मुकम्मल करने, GHMC हुकाम को जल्द अज जल्द कचरे की निकासी के इक़दाम करने और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। कारवान कॉरपोरेटर्स एरिया यूनिट प्रेसिडेंट, MIM कारकुनान व दीगर रुकन असम्बली के हमरा मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के बल्दी डिवीज़न नारायणनगर, गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगर हाउस और इन तमाम इलाक़े जात का तफसीली पैदल दौरा किया गया, जिसके अंदर साबिक़ा में 2-3 महीने पहले जो सदर मोहतरम के हाथों पे जो इफ्तिताह अमल में आया था, जो 297 करोड़ की लागत का जो सीवरेज का काम था, उस तमाम कामों का भी मुआयना किया गया और कई जगह पर रुके हुए थे काम, उन तमाम कामों को भी चालू किया गया। और आज के प्रोग्राम के अंदर GHMC के आला अहदेदार, चीफ इंटोमोलॉजिस्ट जो पिछले एक हफ्ते से लंगर हाउस और शातम नगर, हकीमपेट इन इलाक़ों के कई कंप्लेंट थे और साथ ही साथ उन चीफ इंटोमोलॉजिस्ट, सुपरिटेंडेंट और उनके तमाम अहदेदारों और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, GHMC, वाटर वर्क तमाम के साथ में गोलकुंडा, धानकोटा, सारनगर, कंचा, मोहल्लागंज, रेती गली, हीरा खाना, अफसर खान कॉलोनी, लंगर हाउस, हकीमपेट, बख्तारगुड़ा, इन तमाम इलाक़ा जात का तफसीली दौरा किया गया। और इस दौरे के अंदर जमात के तमाम कारपोरेटर्स, नारायणनगर कारपोरेटर नसीर साहब, लंगर हाउस नुमाइंदा कारपोरेटर और टोली चौकी कारपोरेटर फरहान साहब, गोलकुंडा बदरुद्दीन साहब, GHMC के आला अहदेदार, वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह
आज के दौरे के अंदर जो मेन प्रॉब्लम था, जो पिछले 15-20 दिन से जो राम की जो कंपनी को दिया गया गार्बेज के ताल्लुक से, कचरे के ताल्लुक से, जहाँ पर भी देखे डिम्बार पड़ी हुई थी, और उन तमाम राम की के अहदेदारों से भी बात किया गया। उन्होंने टाइम दिया कि 2 दिन के अंदर पूरे हल्के कारवान में जहाँ पर भी कचरा रुका हुआ है उन तमाम पॉइंट्स को क्लियर करने का तयखुन दिया गया। और चीफ इंटोमोलॉजी साहब भी तयखुन दिए कि शातन तालाब हो, मुलगापुर नाला हो, या हाकिमपेट कुंटा हो, या लंगर झूडा पार्क हो, या गोलकुंडा कटोरा हाउस हो, या मूसी के आसपास के इलाके जात के अंदर मच्छरों की तरफ से लोग परेशान थे। उन्होंने तयखुन दिया कि जल्द से जल्द तमाम फॉगिंग डबल कराने का और स्प्रे कराने का, और मलेरिया डिपार्टमेंट को भी छोड़कर घरे घर भेजने का तयखुन दिया गया। और जो भी पेंडिंग रोड्स थे उन तमाम कामों को भी चालू किया गया। आज के दौरे के अंदर तमाम अहदेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और दौरे के अंदर मजलिस के तमाम इब्तदाई सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दौरे के अंदर साथ में थे, शुक्रिया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 13 ख़वातीन से शादी करते हुए उन्हें धोखा देने वाले शख्स को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक ए शिवाशंकर तलाक याफ्ता ख़वातीन से शादी करता, उनसे रकम और दीगर कीमती अशिया ऐंठ लेता और राह फरार इख्तियार करता। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला मुलजिम अवीर ख़वातीन को अपना निशाना बनाता रहा। गच्चीबौली पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ हैदराबाद, रचाकोंडा, संगारेड्डी, गुंटूर, विजयवाड़ा और अनंतपुर में मुकदमात दर्ज थे। रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। महकमे मौसमियात ने रियासत के बेशतर इलाकों में हल्की ता औसत बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने जिन अजला में आने वाले 3 घंटों में बारिश का इम्कान जताया है उनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निज़ामाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, जगतियाल, करीमनगर, पेदापल्ली, कोमराम भीम व दीगर शामिल हैं। जबकि सिद्दीपेट, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, मुलुगु, यदाद्री, कामारेड्डी, जंगांव व दीगर में जुमा को मूसलाधार बारिश का इम्कान जताया गया है और इसके पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज शहर हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। टीआरएस अरकान पार्लिमान ने कीमतों में इजाफे और जीएसटी टैक्स को लेकर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ पर आज लोकसभा में बतौर एहतजाज लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। पार्लिमानी इजलास के आगाज़ पर टीआरएस रहनुमा नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा में इस मसले पर बहस पर इसरार किया, ताहम स्पीकर की जानिब से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। लोकसभा में दीगर अपोजिशन जमातों ने भी टीआरएस पार्टी की हिमायत की है। टीआरएस के हमरा डीएमके, एसपी, बीएसपी और टीएमसी ने भी मरकजी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ पर बतौर एहतजाज वॉकआउट किया। 30 जून को शुरू होने के बाद 21 दिनों के दौरान जारी अमरनाथ यात्रा को 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अंजाम दिया है, जबकि 4703 यात्रियों का एक और ग्रुप जुमेरात को जम्मू से वादी के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 2,19,755 यात्रियों ने यात्रा की है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नुपुर शर्मा की हिमायत में बयान देने वाले बजरंग दल लीडर आयुष माली के साथ मारपीट का मामला भोपाल तक पहुंच गया है। मामले को संजीदगी से लेते हुए वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमला करने वाले तमाम मुलजिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें से 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 5 को कल तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज्ञानव्यापी केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस P.L. नरसिम्हा की बेंच ने समाअत की। अदालत में मस्जिद कमेटी की जानिब से बताया गया है कि निचली अदालत में रूल 7-11 के तहत बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के फरीक से कहा कि निचली अदालत का हुक्म आने दें, हम आपका कानूनी रास्ता खुला रखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर निचली अदालत का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ जाता है तो आपके पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश में सियासी माहौल तेज़ी से बदल रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गायब है। बीएसपी की कारकर्दगी भी औसत रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी और AIMIM ने ज़बरदस्त एंट्री मारी है।
اربن باڈی انتخابات میں جس مضبوط طریقے سے آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ریاست کی تمام مساواتیں الٹی پڑ رہی ہیں۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی سے ای ڈی کے دفتر میں پوچھ تاچھ جاری ہے۔ نیوز 18 کو ملی جانکاری کے مطابق ای ڈی کے حکام نے سونیا گاندھی کا بیان میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے دفعہ 50 کے تحت ریکارڈ کیا۔ ای ڈی کے افسران یہ سوالات سونیا گاندھی سے پوچھ سکتے ہیں۔ معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ملک سری لنکا کے نئے صدر کی حیثیت سے رانیل وکرما سنگھے نے حلف لیا ہے۔ وکرما سنگھے کے نئے صدر منتخب ہونے کے بعد درجنوں مظاہرین کولمبو میں صدارتی سیکریٹریٹ کے سامنے جمع ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ سابق وزیر اعظم کی ملک میں اعلیٰ عہدے پر تعیناتی سے ناخوش تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ نئے سری لنکن صدر کا انتخاب خفیہ بیلٹ کے تحت ہوا ہے۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران پر پرتشدد احتجاج کے بعد سابق صدر گوٹابایا راجا پکسے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ قبل ازیں صدارتی انتخابات سے قبل مظاہرین نے وکرما سنگھے کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔